Hello, I am Naman Malpani. I have recently qualified my CA final examinations with All India Rank 45 and continuing with our audit revision series. Our today's topic for discussion is audit of NBFC chapter. So we will be revising it. So first of all, let us learn the definition of NBFC. It is defined under section 45 IF of the RBI Act, which defines it as a financial institution which is a company, a non-banking institution which is a company which has a principal business of receiving of deposits और lending, मतलब जिसका काम है पैसा लेना और देना, ठीक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बट इट इज नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब अ financial institution which is a company, a non-banking institution whose principal business is of taking the deposits and lending it, and such other non-banking institutions as may be prescribed. So what we have a criteria for NBFC is a principal business criteria. It is basically that more than 50%, more than means it's greater than 50% of the total assets are financial assets. देखो क्या criteria, what is the criteria of becoming an NBFC? It is basically more than 50% of its total assets are financial assets, and this is the additional condition that more than 50% of the total income of the gross income, ठीक है, is from such financial asset. This means income is also from such of the gross income is from financial assets, and the total assets in the balance sheet, more than 50% of it is a financial asset. So both of these conditions need to be complied by a NBFC to be registered as an NBFC. So now we move on to section 45 IA. ठीक है, 45 IA क्या बोलता है? Every NBFC needs to be registered with the RBI. So it before carrying out a business, it needs to be registered with the RBI. So it has to obtain a certificate of registration from the Reserve Bank of India. And second condition, it should have a net own fund that was previously rupee 25 lakh. And in the law, it had been there was a power that the government could extend it to rupee 200 lakh. So the government did it in April 1999, where the net own fund requirement was rupee extended to rupee 2 करोड़, मतलब जो थी 200 लाख ही है. तो मतलब सिंपल सी बात क्या है, आज की डेट में दो कंडीशन है एनबीएफसी का काम करने के लिए. द फर्स्ट वन मीन दे शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड दैट द नेट ओन फंड शुड बी एटलीस्ट रupee 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ नेट ओन फंड होना चाहिए. तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी. डेफिनेशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी जो रिसीव करता है डिपॉजिट्स एंड लैंड करता है, एंड सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज मे बी स्पेसिफाइड. फर्स्ट वी कवर्ड अप द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 45 आई क्लॉज एफ. ठीक है, फिर अब हम चले प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया. मोर देन 50% is financial assets, and more than 50% is my income from such financial asset. Now next we move on to the what are the criteria for operating as an NBFC. So first criteria is that we should have been registered as an NBFC, and we should have a net own fund of minimum rupee 2 crore. So we have covered our three topics. Now we move on to what are the various types of NBFC. So we first of all, to understand the various types of NBFC, we should first understand the business models in which the NBFCs operate. So if NBFC is a company registered under the Act which has a business of granting loans and advances, acquisition of shares, stocks, debentures, basically securities. ठीक है, तो ये क्या करती है? या तो loans and advances देती है, या basically acquire करती है securities and give its assets on leasing basis, hire purchase basis. So it's covering different type of business: loans and advances, investing in securities, leasing or hiring business. So these are the type of various type in which NBFC are being engaged into. So what are the types of NBFC? So देखो, सबसे पहले तो हम इसे bifurcate करेंगे whether a NBFC is deposit taking or non deposit taking. So first of all, we need to bifurcate whether it is a deposit taking NBFC or a non-deposit taking NBFC. The second bifurcation would be whether it is a systematically important NBFC. Systematically important NBFC, it is not given in the study mat, but I will, for your knowledge purpose, I will define it that a systematically important NBFC is an NBFC which has an asset size of greater than equals to 500 crore. So it is a very important NBFC. So firstly, deposit taking and non-deposit taking. The second one means systematically important and non-systematically important.
सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या हुआ, या तो डिपॉजिट डेटिंग होगी या क्या होगी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होगी, नॉन डिपॉजिट डेटिंग होगी, या फिर देखो डिपॉजिट डेटिंग, ठीक है ये अलग हो गया, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डेटिंग हो सकती है, या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है ना, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट डेटिंग। तो डिपॉजिट डेटिंग तो ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है, एक हो सकता है। देखो मतलब सिंपल क्या फंडा है, देखो डिपॉजिट डेटिंग ऑलरेडी कवर है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डेटिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डेटिंग। तो देखो बेसिकली 3 हिस्सों में हम अपने डिस्कशन को डिवाइड करेंगे। एक होता है डिपॉजिट डेटिंग, मतलब दोनों, चाहे सिस्टमैटिकली हो चाहे नॉन सिस्टमैटिकली हो, दोनों दोनों कवर है इसमें, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉन डिपॉजिट डेटिंग, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो नॉन डिपॉजिट डेटिंग, ठीक है। तो ये अब हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले डिपॉजिट वाइज, ठीक है, सबसे पहले हमें कैसे बाइफरकेट करना है, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। और जो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है और जो डिपॉजिट्स नहीं लेती उसे हम क्या बोलते हैं, NDSI, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टम बट इट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। सो है ना, अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ NBFC लर्न करते हैं। देखो इसके लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या लर्न करो, आप माइंड में लर्न करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंस करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस कंपनी सबसे पहले ये कवर हुआ। फिर हम दूसरा हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है, NBFC, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। फिर अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। अब देखो मैंने क्या बताया था, लोन्स एंड एडवांसेस देती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। दूसरा हो गया, इसके अलावा हो गया सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर अब इसके लिए, इसके अलावा जो 4 चीज़ें बची ये बड़ी सिंपल है, ठीक है। NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इट बेसिकली गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। NBFC फैक्टरिंग, NBFC फैक्टर्स क्या होता है, बेसिकली ये आपके बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करता है, ठीक है, मतलब फैक्टर इन करता है, ठीक है। NBFC नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NOFHC, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFC है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना है, फिर इन्वेस्टमेंट याद करना है, फिर MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन याद करना है, फिर फैक्टर्स एंड होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो सर्टन कंपनीज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद RBI, क्यों, क्योंकि बिकॉज द RBI गवर्न्स इट थ्रू अ डिफरेंट एक्ट, तो इन्हें RBI के पास रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्हें दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद RBI, है ना, मतलब वो करते काम वैसा ही है जैसे NBFC करती है, ठीक है, लेकिन तब भी इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी अंडर सेक्शन 45IA, ठीक है। 45IA में हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी ना NBFC का काम करने से पहले, कि एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा नेट ऑन फंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 करोड़ होना चाहिए। तो अब RBI बोलता है कि इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से है वो इंस्टीट्यूशन है, द फर्स्ट वन मीन द हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनके लिए स्पेशल बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। फिर दूसरा है मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग और सब ब्रोकिंग, ठीक है, क्योंकि ये भी सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड्स, निधि कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, चिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, है ना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, मॉर्गेज गारंटीज कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब आप ये कंफ्यूज हो गए, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर, लेकिन वहाँ पे जो था ना, वो जो पढ़ा था वो NBFC जो टाइप था ना, दैट वाज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब जो नीचे कवर है ना, वो कौन सी है, दैट इज नॉट अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब ये इसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम बीइंग रजिस्टर्ड। तो देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद एसेट साइज ऑफ लेस देन ₹100 करोड़, मतलब एंड दोज विद एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ बट नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद RBI। मतलब देखो कोर इन्वेस्टमेंट है, अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एंड इट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, देन दे नीड टू, दीज आर द टाइप ऑफ NBFC। लेकिन अगर मान लो उसका जो फंड है वो 100 करोड़ से कम है या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन वो डिपॉजिट्स नहीं रखती है, ठीक है, बट नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक फंड, देन दीज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम बीइंग रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, देखो मतलब बड़ा सिंपल है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लर्न करना है, चिट फंड कंपनी लर्न करना है, इंश्योरेंस कंपनी लर्न करना है, निधि कंपनी लर्न करना है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लर्न करना है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी, ठीक है। 8 हमने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, आपको फाइनल के चैप्टर याद आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वेंचर कैपिटल फंड्स, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में बैठानी है, ठीक है। तो ये भी अब हमारा कवर हो जाता है। तो देखो बैंक्स एंड NBFC के बीच में फ़र्क क्या है, देखो NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है, मतलब मैं अभी आया हूँ और मुझे बोला अभी के अभी पैसा दे, है ना, इट कैन एक्सेप्ट ओनली टाइम डिपॉजिट्स, है ना, मैंने बोला ना NBFC कैन बी बाइफरकेटेड इनटू डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इन डिपॉजिट वाले भी क्या डिपॉजिट ले सकते हैं, इट कैन टेक ओनली टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, मतलब टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट
डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, NBFCs डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, मतलब इसके ऊपर हम चेक नहीं ड्रॉ कर सकते। मतलब हम NBFC को, मैं मान लो उसका डिपॉजिटर हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इसके ऊपर चेक नहीं ड्रॉ कर सकता। इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब मान लो अगर बैंक आपका पैसा ना दे वापस, तो आप किससे क्लेम कर सकते हो, ये DICGC, ठीक है, इससे आप पैसा ले सकते हो। अगर मान लो बैंक कोई फेलियर हो जाए ना, तो आप किससे क्लेम कर सकते हो, DICGC। लेकिन NBFC के केस में अगर NBFC फेलियर हो जाए तो आप DICGC से क्लेम नहीं कर सकते। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC, ठीक है ना। अब देखो, अब बैंकों को क्या करना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ लोन देना होता है। मतलब मान लो बैंकों को रूरल एरिया में 20% लोन देना है, लेकिन NBFC के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर्स रिक्वायर्ड बाई NBFC, ठीक है। तो ये भी फंडा हमारा कवर हो जाता है। अब अपन चलते हैं, ठीक, कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है। ये क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़ रहे हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में 3 नॉर्म्स आते हैं, एक होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है इनकम रिकग्निशन नॉर्म एंड एक होता है प्रोविजनल नॉर्म, ठीक है। तो अब अपन एक एक स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, देखो बैंकों को Tier 1 एंड Tier 2 कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। तो मैंने बोला, अब देखो सबसे पहले क्या बोला मैंने, डिपॉजिट टेकिंग NBFC होती है, इट्स सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बट नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है। इट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, ठीक है। डिपॉजिट टेकिंग में दोनों आती है, सिस्टमैटिकली भी और नॉन सिस्टमैटिकली भी, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है एंड डिपॉजिट टेकिंग है, इन दोनों को कैपिटल Tier 1 एंड Tier 2 जो मेंटेन करना है वो 15% मेंटेन करना है। किसका, जो रिस्क वेटेड एसेट है उनका, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स का 15% उसे Tier 1 और Tier 2 कैपिटल मेंटेन करना है, ठीक है। अब मान लो Tier 1 कैपिटल जो होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 10%, मतलब एटलीस्ट Tier 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो मतलब टोटल 15% होना चाहिए, और Tier 1 प्लस Tier 2 15% होना चाहिए। एंड Tier 1 कैपिटल शुड इंडिविजुअली बी अराउंड, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10%, ठीक है। एंड if NBFC is engaged in lending against gold jewelry, मतलब गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट, गोल्ड ज्वेलरी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर वो लैंड करता है, देन इट शुड हैव अ Tier 1 कैपिटल, ठीक है ना। सच लोन्स कंप्राइजिंग 50% और मोर ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट, मतलब मैं क्या लेता हूँ, गोल्ड ज्वेलरी और सिक्योरिटी लेता हूँ और लोन देता हूँ, तो माई Tier 1 कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 12%। मतलब देखो फंडा बड़ा क्लियर है, Tier 1 प्लस Tier 2 15%, ठीक है। Tier 1 अगर मेरा गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट मैं लोन देता हूँ और ऐसे लोन की संख्या 50% है उससे ज़्यादा है, तो आई शुड हैव अ Tier 1 कैपिटल ऑफ 12%, अदरवाइज इट्स 10%, ठीक है। अब देखो कुछ बहुत रिस्क, देखो मैंने क्या बोला, 15% किसका होना चाहिए, रिस्क वेटेड एसेट्स का। तो रिस्क वेटेड एसेट कैसे निकालेंगे, जो एसेट की वैल्यू है मल्टीप्लाई विद रिस्क परसेंटेज जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब हम सारे परसेंटेज तो नहीं याद रखेंगे, लेकिन कुछ बहुत परसेंटेज हम लर्न करेंगे, ठीक है। देखो जो कैश एंड बैंक बैलेंस होता है उसमें बैंक ये मानती है कि इसमें 0% रिस्क है, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस इंक्लूडिंग FD एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। तो इसमें हम कितना मानते हैं, 0% रिस्क है, ठीक है। लेकिन अगर देखो अब देखो FD और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके पास है, बैंक के पास। अगर यही FD और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर बॉन्ड्स होते किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो हम कितना रिस्क मानते, 100% रिस्क मानते। मतलब ध्यान से पढ़ना, अगर किसी बैंक के पास है तो हमारा 0% रिस्क है, FD या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन अगर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है तो आर रिस्क वुड बी, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट वुड बी 100%, ठीक है। अगर मैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता हूं देन इट वुड बी 0%, ठीक है। बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना रिस्क है, 20%, ठीक है। मतलब देखो बड़ा सिंपल सा है, FD कमर्शियल डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर बैंक के पास है तो 0% रिस्क है, अगर किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे के पास है तो ऑब्वियसली बात है 100% रिस्क है, ठीक है। ऑल एसेट कवरिंग PPP है ना, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, एंड पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके अंदर 50% रिस्क है, ठीक है। बाकी जो अभी मैं जो छोड़ रहा हूँ इन सारों की रिस्क कितनी है, इन सारों की रिस्क है 100%, ठीक है। तो जो भी मैं कवर नहीं कर रहा उन सारों की रिस्क क्या है, 100%, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस फुली सिक्योर्ड अगेंस्ट डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर डिपॉजिट के अगेंस्ट मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए एंड इट शुड हैव अ 0% रिस्क, ठीक है। लोन्स टू स्टाफ 0% रिस्क, ठीक है।
इनकम टैक्स नेट ऑफ प्रोविजन है ना, इट शुड बी नेटेड ऑफ विद द प्रोविजन एंड इट हैज़ अ 0% रिस्क, ठीक है। एडवांस टैक्स नेट ऑफ प्रोविजन 0% रिस्क। इंटरेस्ट अगर हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर तो 0% रिस्क है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गारंटीड क्लेम्स है उनमें कितना है, 0% रिस्क है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो गारंटीड क्लेम्स है, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर तो मतलब जो क्लेम्स है, ठीक है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था विच हैव नॉट रिमेन इन डिफॉल्ट और विच आर इन डिफॉल्ट फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 90 डेज, तो उनमें 20% का प्रोविजन बनाना है। अगर वो 90 दिन से भी ज़्यादा हो जाते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के है, ठीक है, तो 100% का बनाना है। मतलब देखो सीजी में अच्छा 90 दिन हो या उससे ऊपर हो डिफॉल्ट, ठीक है, दोनों केस में ही 0% रिस्क है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का हो तो अप टू 90 डेज 20% रिस्क है और अदरवाइज 100% रिस्क है, ठीक है। और ये सारे आपको लर्न कर लेने हैं। फंड बेस्ड क्लेम्स ऑन सीजी, डायरेक्ट लोन और क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टेट, मतलब बड़ा सिंपल सा फंड है। टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखो एनपीए के ऊपर क्या होगा, एनपीए के ऊपर जो इनकम होगी, इनकम बुक होगी, वो ओनली ऑन रियलाइजेशन बेसिस बुक होगी। जब पैसा मिल जाएगा तभी मैं इनकम बुक करूँगा। और जो पुरानी इनकम है जो मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, जब तक वो एनपीए बन चुका है और वो पैसा मिला नहीं है अभी तक, ठीक है, एनी सच इनकम रिकॉग्नाइज बिफोर द एसेट बिकम एनपीए एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड शैल बी रिवर्स्ड। मतलब मान लो 100 रुपये मैंने पहले रिकॉग्नाइज किया था, उसमें से 80 रुपये मिल गया, 20 रुपये आज भी नहीं मिला और वो एसेट एनपीए बन गया, तो आई शुड रिवर्स माई ₹20, ठीक है। तो एंड रिमेन शैल बी रिवर्स, मतलब उस इनकम को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंड है, ठीक है। अब चलते हैं अपन स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट, ठीक है। तो अब इनकी प्रोविजनल रिक्वायरमेंट भी अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या समझना है, लॉस एसेट, सब स्टैंडर्ड, है ना। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, यहाँ पे आइए है ना, ये देखो ये चार्ट मैंने बड़ा सिंपल सा बना दिया, ठीक। देखो आप यहाँ से देखो स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो उसकी प्रोविजनिंग जो होती है वो होती है 0.40%, ठीक है। जो सब स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, एनपीए रहा होता है कितने महीने के लिए, 18 मंथ्स के लिए। अब ये वाली जो लिमिट है ये किसके लिए है, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला देखो 3 टाइप की एनबीएफसी होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होती है डिपॉजिट टेकिंग, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट इट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनडीएसआई, ठीक है, प्लस डिपॉजिट टेकिंग के लिए एनपीए की जो लिमिट होती है वो 12 महीने होती है। मतलब अगर कोई एसेट 12 महीने तक एनपीए रहता है देन इट बिकम्स अ सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। और अगर कोई एनबीए 18 महीने तक रहता है इन केस ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट देन इट बिकम्स एनपीए, ठीक है। डाउटफुल कब बनता है, जब वो सब स्टैंडर्ड रहता है फॉर एटलीस्ट 12 महीने और यहाँ पे 18 महीने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एनपीए कब बनता है, ठीक है। तो अब एनपीए कब बनता है, तो अब देखो अगर मान लो एनपीए कब बनता है, तो अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड डिपॉजिट टेकिंग है, तो इसमें कम टाइम लिमिट है, 3 महीने का ही टाइम लिमिट है। अदरवाइज 6 महीने में वो एनपीए बन जाता है, ठीक है। अगर देखो तो वो 6 महीने के अंदर एनपीए बनता है, ठीक है। अगर यही मान लो लीज रेंटल का केस होता तो अगर जो एनटीएनएसआई है इसके केस में 12 महीने में वो बनता एनपीए बनता, यहाँ पे 3 महीने में एनपीए बनता, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। एक बार हम स्टडी मैथ्स से भी गो थ्रू कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड एसेट में कोई दिक्कत नहीं होती, नो डिफॉल्ट इन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, ठीक है। सब स्टैंडर्ड क्या होता है, जो एनपीए रहा है फॉर एक्सीडिंग 18 मंथ, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ ये एनएस नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनडी, ठीक है, एनएसआई एनडी के लिए, ठीक है। लेकिन जो 12 महीने हैं वो किसके लिए, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट प्लस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिटेटिंग एज वेल एज डिपॉजिटेटिंग, ठीक है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिटेटिंग एंड डिपॉजिटेटिंग, इसके लिए 12 महीने ही है, ठीक है। डाउटफुल एसेट क्या होता है, जो सब स्टैंडर्ड रहा 18 महीने से ज़्यादा, ठीक है, या फिर जो 12 महीने इन केस ऑफ दिस, ठीक है। लॉस एसेट क्या होता है, विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज लॉस एसेट, ठीक है, तो उसे लॉस एसेट बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो एनपीए कब बनता है, एनपीए कब बनता है, देखो एनपीए में 2 चीज़ें हैं। पहले तो आप देखो इंटरेस्ट और टर्म लोन, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल की डिफॉल्ट है, तब तो 3 और 6 महीने की लिमिट है। लेकिन अगर लीज रेंटल, मैंने बोला ना एनबीएफसी लीजिंग का भी काम कर सकती है, तो लिमिट क्या आएगी, तब लिमिट आएगी 3 और 12 महीने, ठीक है। तो देखो अगर इंटरेस्ट 6 महीने के लिए ज़्यादा रहा, ठीक है, टर्म लोन 6 महीने के लिए ज़्यादा रहा, डिमांड या कॉल लोन कितना दिन ज़्यादा रहा, 6 महीने के लिए ज़्यादा रहा फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड और कॉल लोन, ठीक है, बिल विच रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर, ठीक है। अब ये वाली जो लिमिट है ये 3 महीने हो जाएगी, किन किन के लिए, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए एंड डिपॉजिट टेकिंग के लिए। तो ये जो 6 महीने की लिमिट है ये 3 महीने हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। लीज रेंटल में क्या होगा, लीज रेंटल में 12 महीने का पीरियड होता है, लेकिन ये 3 महीने ही रहेगा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट टेकिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला फंडा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर मान लो नमन मालपानी डिफॉल्ट करता है तो नमन मालपानी के जितने भी अकाउंट है ना, अगर मान लो मेरा एक अकाउंट एनपीए बनाना, तो जितने भी अकाउंट उस बैंक में है ना, उस बैंक के अंदर वो सारे एनपीए बन जाएंगे। मतलब मान लो मैंने दो लोन ले रखे हैं, एक एनपीए बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा, तो जो अगर एक वाला एनपीए बन जाता है तो वो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर देखो मेड अवेलेबल टू द सेम बॉरोवर, देन व्हेन एनी ऑफ द मतलब अगर एक बन जाता है तो वो दूसरा भी ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन लीज और हायर परचेज के केस में ये वाला फंडा नहीं लगता। ठीक है, इन केस ऑफ लीज एंड हायर परचेज। ठीक है, लीज एंड हायर परचेज के केस में टाइमिंग भी अलग थी, 12 और 3 महीने, नॉर्मल में क्या था 6 और 3 महीने। ठीक है, लीज एंड हायर परचेज के केस में क्या होता है, एन है ना शैल क्लासीफाई ईच अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। मतलब इंडिविजुअल अकाउंट देखा जाएगा, नमन का पहला अकाउंट देखा जाएगा और नमन का दूसरा अकाउंट इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाएगा लीज एंड हायर परचेज में। ठीक है, लॉस एसेट में 100% प्रोविजन बनाना है। डाउटफुल में जो अनसेक्योर्ड पोर्शन है, डाउटफुल में जो अनसेक्योर्ड पोर्शन है उसका 100% प्रोविजन बनाना है। ठीक है, और जो सिक्योर्ड पोर्शन है, ठीक है, उसका है ना सिक्योर्ड पोर्शन का हमें डिपेंड करता है। अगर अप टू 1 ईयर डाउटफुल था तो 20%, 1 to 3 ईयर था तो 30%, मोर देन 3 ईयर था तो 50%। ठीक है, सब स्टैंडर्ड के ऊपर 10% की प्रोविजनिंग है और स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर 0.4% की प्रोविजनिंग है। ये मैं आपको यहाँ से भी करा देता हूँ। स्टैंडर्ड एसेट पे 0.4, सब स्टैंडर्ड पे 10%। ठीक है, अनसेक्योर्ड पोर्शन के ऊपर 100% बनाना है, डाउटफुल अगर वो है, और सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर 20, 30, 50। ठीक है, ये लिमिट आपको माइंड में रखनी है। लॉस एसेट पे 100% प्रोविजनिंग। ठीक है, अब अपन चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की ओर। अब हम पढ़ते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ एनबीएफसी। सबसे पहले देखो इसमें ना 5 पॉइंट है और 5 से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। नवंबर 20 में पहली बार इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको बिजनेस को समझना है, किसके, एनबीएफसी के बिजनेस को समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना है, फिर उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझना है, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, फिर तीसरा पॉइंट जो है वो आपको आरबीआई के साथ जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जो हमने 45 IA में सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी ना कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड नेट ओन फंड्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 करोड़ होना चाहिए। तो वो वाली कंडीशंस क्या मीट आउट करी है या नहीं करी है। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ठीक है, फिर क्या एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, मैंने आपको बताया था ना एक डिपॉजिट टेकिंग होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो जो डिपॉजिट टेकिंग है उसके लिए एक डायरेक्शंस है पब्लिक डिपॉजिट्स की एक्सेप्टेंस के, क्या वो 2016 के डायरेक्शंस को कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, और फिर लास्ट जो पॉइंट आता है वो एनबीएफसी के जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है। प्रूडेंशियल नॉर्म में हमने क्या क्या पढ़ा, एक कैपिटल एडिक्वेसी पढ़ा, एक इनकम रिकग्निशन पढ़ा, मतलब जिसमें स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, एक हमने प्रोविजनल रिक्वायरमेंट पढ़ी। तो क्या ये सारी चीज़ें कंप्लाई की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब हमने एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले असर्टेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। बिजनेस कैसे समझोगे आप, देखो सबसे पहले एमओए, एओए। ठीक है, इन दोनों को पढ़ोगे, एमओए एंड एओए। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनीज एंगेज इनटू। ठीक है, अब हम इसके लिए देखो एमओए में तो बहुत सारे बिजनेस भी लिखे हो सकते हैं, तो अब हमें ये समझना है कि कौन सा इनका मेन बिजनेस है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस पॉलिसी ऑफ द कंपनी हम उसे समझेंगे सो एज टू असर्टेन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 50% शुड बी फाइनेंशियल एसेट एंड मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस इनकम शुड बी फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल बिजनेस पॉलिसी को हम समझेंगे, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, मिनट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस बिजनेस की और इनका ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, और हम अब बस हमें बिजनेस को निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा हो जाए तो हमें पता है कि उसे एनबीएफसी क्लासीफाई करना है। सिंस देखो द टास्क ऑफ ascertaining the principal business activity of any NBFC is of paramount importance since the very classification of a company as a NBFC and its further classification would all depend upon its principal business activity। तो मतलब principal business activity निकालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम लगाना इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, मुझे क्या लेनी है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी, अकाउंटिंग सिस्टम की एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स की। ठीक है, तो मुझे किस लिए अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ताकि मैं अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफाइन कर पाऊँ। मुझे कितने एक्सटेंट तक चेकिंग करनी है, अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो मैं अपनी चेकिंग को कम कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, और मुझे उनके बारे में एन ऑडिटर शुड
should also ascertain whether the internal controls in place are adequate and are being effectively followed. क्या वो adequate है और क्या वो effectively follow हो रहे हैं, ठीक है। अब एक internal control के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वो है क्या system of recovery, मतलब क्या ये monitor किया जाता है कि इस बंदे से regularly पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। Effectiveness of the system of recovery, ठीक है। तो effective system of periodical review of advances is in place which would facilitate effective monitoring and follow up, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाए कि क्या ये पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ पीरियडिकल रिव्यू सिस्टम, ठीक है, देयर कुड बी अ नॉन डिटेक्शन ऑफ द स्टेटी एडवांसेस, ठीक है। तो मतलब जो कि बाद में एनपीए टर्न आउट हो सकते हैं। मतलब एक इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है मॉड्यूल में, वो है रिकवरी के ऊपर क्या सिस्टम है क्या कोई इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। जो असर्टेन इन द बिजनेस, उसमें क्या था, एमओए एओए मिनट्स पढ़ो, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन भी उसके ऊपर डिपेंड करता है और क्या वो एनबीएफसी है या नहीं है वो भी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरा हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल लगाना उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि अंडरस्टैंडिंग ले और हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम अपने NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफाइन करें, ठीक है। साथ साथ में एक इंटरनल कंट्रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिस्टम ऑफ रिकवरी, क्या पैसा टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई में तो पहले आपको 45 IA चिपकाना है जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस नेट ओन फंड 2 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एन ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द आरबीआई। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फाइल किया गया है विद आरबीआई फॉर रजिस्ट्रेशन वो हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। हमें ये भी देखना है क्या रजिस्ट्रेशन लिया गया है और क्या मिनिमम नेट ओन फंड का क्राइटेरिया कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट अब यहाँ पे थोड़ा सा नया आता है, वो है ये कि एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट्स होल्ड करता है उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ परसेंटेज, ठीक है, कि वो जो डिफाइन होता है, ठीक है, इनटू अ लिक्विड एसेट, ठीक है। तो द आरबीआई इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब अ फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग टू इंश्योर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। दिस क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है, ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट क्वार्टर। मतलब हमें जो बंदा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उसे लिक्विड एसेट्स में कुछ पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है आरबीआई की रजिस्ट्रेशन में, पहले तो आपको 45 IA चिपकाना है, साथ साथ में आपको एक ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखना है कि क्या पब्लिक डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है जिसमें क्या जो लिक्विड एसेट में रिक्वायरमेंट थी क्या वो कंप्लाई की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जो पब्लिक डिपॉजिट्स की डायरेक्शंस है, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स की डायरेक्शंस को अब हमें लर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो पब्लिक डिपॉजिट्स अगर हमें लेने हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमें क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो एज अ ऑडिटर मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग ली है मेरे क्लाइंट ने, मेरी एनबीएफसी ने जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, क्या उसने एक क्रेडिट रेटिंग ली है, ठीक है। तो अगर देखो मान लो अब देखो वो क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, है ना। अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली अपना डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज है रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 मान लो 8 CRA लेवल पे मैं इतना डिपॉजिट ले सकता हूँ। अगर वो थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं अपने डिपॉजिट्स को और बढ़ा सकता हूँ, अगर उससे वो नीचे जाता है तो मैं अपने डिपॉजिट्स को मुझे कम करना पड़ा, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि क्या अगर वो अपग्रेड या डाउनग्रेड हो रहा है तो क्या मेरे डिपॉजिट्स भी मैं ऊपर या नीचे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंडा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इतना ज़्यादा वो डाउनग्रेड हो गया, मतलब मेरी इतनी क्रेडिट रेटिंग बेकार हो गई कि वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है तो उससे भी वो नीचे चला गया, मतलब मान लो कि एक बॉन्ड भी बहुत अच्छी मतलब मान लो AAA है, ठीक है, AAA मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। अब मेरा बॉन्ड क्या है AAA से भी नीचे चला गया, मतलब सी वाली लाइन में आ गया, तो ऑब्वियसली बात है भाई वो क्या है, इट हैज़ फॉलन बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट रेट। सो अब क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट थे वो क्या चल जाएंगे, मेच्योरिटी की तरफ चल जाएंगे, मतलब उन्हें मुझे रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने हैं, स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट, ठीक है ना। और मुझे आरबीआई को रिपोर्ट करना है विद इन 15 वर्किंग डेज, है ना, टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वेयर द एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड, ठीक है। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कोई नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, पुराने वाले मेच्योरिटी की तरफ चल जाएंगे और मुझे 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है 15 वर्किंग डेज, है ना, किसी रीजनल ऑफिस को, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब मैं पब्लिक डिपॉजिट की चेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो मैंने क्रेडिट रेटिंग देख ली, ठीक है, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या क्रेडिट रेटिंग ली गई थी या नहीं ली गई थी, ठीक है। फिर मुझे क्या चेक करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मैं चेक करूँगा, ठीक है। मुझे ये देखना है कि जैसे मान लो मैंने जो
ये मोबिलाइज किया था फंड, डिपॉजिटर्स को जो ढूंढने का काम दिया था वो मैंने दिया था किसी एजेंट को, ब्रोकरेज, जिसे मैं ब्रोकरेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेस्ट चेक द ब्रोकरेज और कमीशन और इंसेंटिव कैलकुलेशन, क्या वो सही दिया है या नहीं दिया गया, ठीक है। अब मान लो मैं डिपॉजिट तभी एक्सेप्ट करूँगा जब जो डिपॉजिटर है वो मुझे एक रिटर्न एप्लीकेशन देगा, ठीक है। तो रिटर्न एप्लीकेशन बाय डिपॉजिटर क्या मुझे आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। और क्या उसमें ये बताया गया था कि वो कौन सा कैटेगरी डिपॉजिटर है, ठीक है। क्या वो मेंबर है मेरा, क्या वो डायरेक्टर है, ठीक है, या क्या प्रमोटर तो नहीं है, ठीक है, या फिर वो पब्लिक का बंदा है, ठीक है। तो वो जैसा भी है वो बताया, मतलब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले रिटर्न एप्लीकेशन आई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्रेडिट रेटिंग वाला पॉइंट लिंक किया जो सबसे फर्स्ट पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और फिर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्रोकरेज, ये सब चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। अब देखो एक डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन होता है, तो मुझे ये देखना है कि क्या वो डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और मुझे ये देखना है कि क्या हम रेगुलरली रीपे करते हैं अपने जो डिपॉजिट्स जो हमने एक्सेप्ट किया है, मतलब उन्हें रीपेमेंट उसकी रेगुलरली है या नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने ऑब्वियसली बात आपको बताया, जब हम डिपॉजिट लेते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन लिक्विड एसेट, ठीक है। चेक वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द अप्रूव्ड लिक्विड एसेट, ठीक है, इज इन सेफ कस्टडी विद द डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है इस लिक्विड एसेट की एक रिटर्न जाती है, तो क्या एनबीएफसी ने वो फाइल करी है, इट्स प्रिस्क्राइब रिटर्न इन अ टाइमली मैनर, ठीक है ना। अब देखो अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती तो उसके बोर्ड को ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि वेदर अ बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द एनबीएफसी टू द इफेक्ट दैट इट हैज नीदर एक्सेप्टेड नॉर इट विल एक्सेप्ट एनी पब्लिक डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि नहीं तो हमने अभी तक किया है, ना ही हम करेंगे क्या पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी यही हमने एनबीएफसी का ऊपर एक टाइप पढ़ा था जहाँ पे हमने लिखा था नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो कि एक होल्डिंग जो क्या करती है, सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी में ग्रुप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करती है। इन केस ऑफ ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज, चेक वेदर द एनबीएफसी हैज पास्ड अ बोर्ड रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट द कंपनी हैज इन्वेस्टेड और वुड इन्वेस्ट ओनली इन इट्स ग्रुप कंपनीज, ठीक है ना। एंड इट वुड नॉट ट्रेड, मतलब उसे रोज खरीदना और बेचना नहीं करेगी, सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगी। एंड इट वुड नॉट ट्रेड इन सच शेयर्स और सिक्योरिटीज। मतलब देखो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस में क्या क्या लिखा है, सबसे पहले रिटर्न एप्लीकेशन आनी चाहिए, फिर आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ऑब्टेन करना है, फिर देखो ऑब्वियसली बात है आपको इंटरेस्ट का टेस्ट चेक करना है, फिर देखो ऑब्वियसली बात है पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इनटू द लिक्विड एसेट्स, क्या वो की गई है या नहीं की गई है, क्या प्रेस्क्राइब रिटर्न्स फाइल की गई है या नहीं की गई है, ये भी एक पॉइंट हो गया। क्या डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन किया गया है ना, क्या उसमें जो रीपेमेंट है क्या वो रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए, ये आपको माइंड में रखने हैं। और जो नॉन डिपॉजिट डेटिंग है उसके केस में बोर्ड को ये रेजोल्यूशन पास करना होता है दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट एंड वी हैव नीदर एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट्स अप टू दैट डेट। अब देखो एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म में मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर लाना है, मुझे मैंने बोला इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर दूसरा आईआरएसी नॉर्म्स हो गया इन प्रोविजनिंग, ठीक है। फिर दूसरा क्या था कैपिटल एडिक्वेसी। तो मुझे इन सारों के साथ कंप्लायंस देखना है, कंप्लायंस देखना है विद द प्रूडेंशियल नॉर्म, ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स इसमें क्या क्या आता है, इनकम रिकग्निशन आता है, ठीक है, एसेट क्लासिफिकेशन आता है, प्रोविजनिंग आता है, ठीक है। फिर वहाँ पे नीचे एक वापसी पॉइंट आता है एनबीएफसी हैव कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल नॉर्म, ठीक है ना। क्या उसने क्लासिफाई किया अप्रोप्रिएटली, क्या प्रॉपर प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। तो ये सेम पॉइंट है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर देखो ये जो दूसरा पॉइंट है ना कि जहाँ पे डिमांड या कॉल लोन, ठीक है, मतलब देखो डिमांड या कॉल लोन इसका क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया था कि एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, ठीक है, लेकिन डिमांड या कॉल लोन दे तो सकती है। तो अगर वो देती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी एनबीएफसी हैज़ टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर द डिमांड या कॉल लोन, ठीक है, उसे प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एनपीए में इनकम तभी बुक करना जब वो रियलाइज हो जाए, इनकम फ्रॉम एनपीए शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन रियलाइजेशन बेसिस ओनली, ठीक है। अब देखो ये फंडा भी हो गया। अब मान लो पिछले साल एक अकाउंट एनपीए था, इस साल वो एनपीए नहीं रहा, तो आपको रीजन ढूंढना है व्हाई इट इज नाउ not NPA, ठीक है। Check whether all the accounts which have been classified as NPA in the previous year also continue to be shown as in the current year, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, जो पुराना था वो आज भी NPA रहना चाहिए एक्सेप्ट ठीक उसमें कुछ करेक्शन आ गया, शुड द ऑडिटर शुड स्पेसिफिकली एग्जामाइन सच अकाउंट टू असर्टेन वेदर द अकाउंट्स हैज बिकम रेगुलर। तो मुझे एग्जामाइन करना, देखो एनपीए में बड़ा सिंपल सा है, एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म क्या कंप्लायंस किया गया है, एनपीए पे तभी इनकम बुक करना जब पैसा रियलाइज हो जाए, क्या बोर्ड ने पॉलिसी फ्रेम करी है ऑन डिमांड या कॉल लोन, और एनपीए जो पिछले साल
क्या वो इस साल भी है, अगर नहीं है तो क्या वो सही में रेगुलर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो मैंने इसे बड़ा सिंपल बनाया, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब कोई चीज़ को ले जाना, जैसे मतलब कोई चीज़ चुरा लेना, ठीक है। तो मतलब जैसे इन्वेंट्री चुरा लेना तो मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। देखो फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब नकली कोई कागज बना के पैसा चुरा लेना, ठीक है। तो फॉर्ज्ड एनकैशमेंट, ठीक है ना। अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी मतलब मैंने किसी बंदे को लोन दे दिया और लोन के बदले में उससे कुछ पैसे लिए, ठीक है। तो अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन मतलब लोन दिया, है ना। अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी, है ना। नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, ठीक है। चीटिंग एंड फॉर्जरी, ठीक है। देखो है ना, मिस अप्रोप्रिएशन क्या होगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अदर देन कैश होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश शॉर्टेजेस, ठीक है। चीटिंग एंड फॉर्जरी एंड इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कमिंग अंडर स्पेसिफिक कैटेगरी अबव, ठीक है। मतलब देखो मिस अप्रोप्रिएशन सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, मिस अप्रोप्रिएशन पढ़ा, ठीक है। फिर फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट पढ़ा, फिर अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी पढ़ा, ठीक है। नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस पढ़ा, चीटिंग एंड फॉर्जरी पढ़ा, इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड, ठीक है। लेकिन देखो नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एंड इरेगुलरिटी इन फॉरेन ट्रांजैक्शन ये तभी माना जाएगा फ्रॉड है जब इंटेंशन टू चीट और डिफ्रॉड सस्पेक्टेड या प्रूव है, ठीक है। मतलब ये तभी माना जाएगा जब इसकी इंटेंशन थी, ठीक है। मतलब देखो मिस अप्रोप्रिएशन, फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसका एनकैशमेंट, नेग्लिजेंस, कैश शॉर्टेजेस, इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, है ना। और आपका क्या क्या पॉइंट थे, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, चीटिंग एंड फॉर्जरी, ठीक है। तो ये अब हमारे सारे पॉइंट थे। लेकिन अब देखो जो नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एंड इरेगुलरिटी इन फॉरेन ट्रांजैक्शन ये तभी फ्रॉड माने जाएंगे जब व्हेन इंटेंशन टू फ्रॉड इज बीन सस्पेक्टेड। लेकिन अगर मान लो कैश शॉर्टेज है और वो कैश शॉर्टेज मिलती है 10,000 से ज़्यादा की, तो भाई भले इंटेंशन ना हो तब भी वो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ कैश shortages more than rupee 10,000, ठीक है। However, the following cases where fraudulent intention is not suspected, ठीक है ना, it will be treated as fraud, ठीक है। अगर कैश शॉर्टेज 10,000 से ज़्यादा है या फिर 5,000 से ज़्यादा है और ये जो शॉर्टेज जो ढूंढी है वो उस बंदे ने नहीं ढूंढी जो वो उसके साथ डील कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन किसी और बंदे ने ढूंढी है। मतलब केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन rupee 5,000 इफ डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट या ऑडिटर या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड रिपोर्टेड ऑन एंड नॉट रिपोर्टेड ऑन द अटेंडेंस बाय पर्सन हैंडलिंग द कैश। मतलब जो डील कर रहा है उसने नहीं बताया मतलब ये कम पैसे पड़ रहे हैं, किसी और ने ढूंढा ये चीज़, ठीक है। तो ये सारा फंडा है। अगर ऑब्वियसली बात है कहीं मेरी और कोई फॉरेन ब्रांच में कोई फ्रॉड हो रहा है देन आई हैव ऑल्सो टू रिपोर्ट दैट, है ना। एनबीएफसी कवर्ड इन दिस डायरेक्शन हैविंग ओवरसीज ब्रांच, ठीक है, शैल ऑल्सो रिपोर्ट ऑल द फ्रॉड्स परपिट्रेटेड एट सच ब्रांचेस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आ जाता है। अब अपन पढ़ेंगे एनबीएफसी की आईसीसी वाले में चेकलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, तो ये भी हम अभी लर्न कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी चेकलिस्ट। देखो एक तो ये इन्वेस्टमेंट करेगी, दूसरा लोन्स देगी। जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो देखो या तो हमें फिजिकली हम वेरीफाई कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स को, तो या तो हम क्या कर सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। दूसरा क्या होगा या फिर ये डिपॉजिटरी के पास होगी तो हम क्या कर सकते हैं डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन मंगा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि हम डिपॉजिटरी इफ हेल्ड थ्रू अ डिपॉजिटरी ऑब्टेन अ कंफर्मेशन फ्रॉम द डिपॉजिटरी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं या डिपॉजिटरी से। अब देखो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट है तो इसके ऊपर क्या आएगी, डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आएगी, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, क्या वो डिक्लेयर जो हुई थी क्या वो रिसीव हुई है ना। और डिविडेंड हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टू बी रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम एंड जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की इनकम है ये हमें कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। लेकिन हम डिविडेंड इनकम को, ठीक है, हाउएवर द एनबीएफसी हैज़ एन ऑप्शन, ठीक है, डिविडेंड इनकम एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड आता है उसे हमें कैश बेसिस पे ही करना है। लेकिन एनबीएफसी हैज़ एन ऑप्शन फॉर डिविडेंड दैट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम। मतलब देखो ये कौन सा वाला डिविडेंड होगा, जो फाइनल डिविडेंड होगा, क्योंकि फाइनल डिविडेंड एजीएम में आता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आ जाता है। तो है ना, डिविडेंड इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस कौन से वाला डिविडेंड रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो कि एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। डिविडेंड इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस इफ द सेम हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट इन इट्स एजीएम एंड इट्स राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा फंडा क्या है, फंडा इतना सा है बस, डिविडेंड इनकम को और हमेशा कैश बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज करना है। इंटरेस्ट क्या जो हमने रिकॉर्ड किया था क्या वो अकाउंट फॉर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम किसी ब्रोकर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो क्या उसने जो ब्रोकर ने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया है, ठीक है, उसमें जो प्राइस है क्या वो स्टॉक मार्केट के प्राइस से मैच खाता है
या नहीं खाता है, ठीक है। अब देखो परचेज एंड सेल के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। तो बोर्ड मिनट्स को मैं वेरीफाई करूंगा कि परचेज एंड सेल के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, और उसमें ये भी लिखा होता है वेदर दीज इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी हम इन्वेस्टमेंट्स की पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू किया गया है तरीके से, क्या उसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं, ठीक है ना। मुझे लिस्ट ऑब्टेन करनी है जो सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और मुझे वो इन्वेस्टमेंट भी वेरीफाई करनी है जो इस साल सब्सिडरी कंपनीज में हुई है, ठीक है। मुझे AS 13 का कंप्लायंस चेक करना है। मुझे ये भी देखना है अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स करता हूँ, वो भी कौन से, अनलिस्टेड कंपनीज के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द अनकोटेड डिबेंचर्स और बॉन्ड, तो इसे मैं इन्वेस्टमेंट ना मान के मुझे इसे टर्म लोन मानना चाहिए कि मैंने किसी कंपनी को लोन दिया है, हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट बट एज टर्म लोन्स, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बेसिकली दिस इज माई लोन दैट आई हैव गिवन टू द अदर कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स शुड बी ट्रीटेड एट पार विद द लोन गिवन, ठीक है। तो ये फंडा हो गया, ठीक है। डिपॉजिटरी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब देखो, अब हमारा अब दूसरा जो स्कीम होती है वो होती है सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी जिसके पास होती है वो दूसरे बंदे को सिक्योरिटी दे देता है कुछ टाइम के लिए, और फिर वो बंदा ना कुछ टाइम के बाद जिस बंदे को दी है वो वापसी दे देता है सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके लिए इस बंदे को कुछ चार्जेस मिलते हैं, ठीक है। और जो सिक्योरिटी वापसी देता है ना, इस समय में मान लो जितने टाइम के बीच में अगर कुछ डिविडेंड मिलता है तो ये जो बंदा है ना जिसे मैंने सिक्योरिटी दी है ये डिविडेंड भी वापसी देगा, ठीक है। तो ये फंडा है। तो देखो एन ऑडिटर शुड वेरीफाई, है ना, ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, सिक्योरिटीज ऑफ द वेरीफाई दैट द सिक्योरिटीज ऑफ द सेम टाइप और क्लास आर रिसीव्ड बैक बाय द लेंडर, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड टुगेदर विद ऑल द कॉर्पोरेट बेनिफिट, जैसे डिविडेंड, ठीक है, राइट, बोनस शेयर। मतलब देखो अगर मान लो मैंने किसी बंदे को शेयर दिए और बोला 2 महीने बाद मुझे वापसी दे देना, तो उस बीच के बीच में 2 महीने के बीच में जो भी डिविडेंड मिलता है वो साथ साथ में वो मुझे भी वापसी दे देगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या मिलता है, चार्जेस मिलते हैं। तो क्या चार्जेस रिसीव्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बीच में अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी रोल होता है कि मान लो वो एक्चुअल में सिक्योरिटी जो होती है ना वो डायरेक्टली उसके पास नहीं जाती, वो इंटरमीडिएरी के पास पड़ी रहती है, ठीक है। ऑब्टेन अ कंफर्मेशन फ्रॉम द इंटरमीडिएरी रिगार्डिंग सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड और बोरोड फ्रॉम इट एज एट ईयर एंड, ठीक है। तो मतलब उसके पास क्या वो सिक्योरिटी है या नहीं है। अब अपन चलते हैं लोन के ऊपर। तो लोन के ऊपर सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे आता है, ठीक है, कि मैं कभी भी लोन नहीं देना चाहिए। वेरीफाई दैट द NBFC हैज नॉट एडवांस एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर, मतलब अपने शेयर के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में किसी बंदे को लोन नहीं दे सकता, ठीक है। फिर देखो, फिर तो बड़े सिंपल से पॉइंट है, ठीक, हर लोन प्रॉपरली सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्या सिक्योरिटी ऑब्टेन करी गई है, क्या एग्रीमेंट उनके साथ एंटर किया गया है, मुझे बैलेंस कंफर्मेशन लेना है उनके साथ, ठीक है ना। तो ये, और एक बंदे को मुझे इतना लोन भी नहीं दे देना है। चेक वेदर द NBFC हैज नॉट लेंट इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट टू एनी सिंगल बोरोवर, ठीक है, मतलब इतने से भी ज़्यादा लेन नहीं देना, उनका सही क्लासिफिकेशन हुआ है, क्या उनका प्रोविजन बना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, बहुत ईजी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है, मुझे रिपोर्ट देनी होती है। कौन कौन सी रिपोर्ट देनी होती है, 143 के अंदर मुझे अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। अब NBFC के कुछ में कुछ और भी रिपोर्टिंग है। देखो, एक रिपोर्टिंग तो होती है RBI को, एक होती है बोर्ड को, ठीक है, मतलब 2 एडिशनल रिपोर्टिंग है। उसमें क्या होता है, नॉर्मल कंपनी के केस में सिर्फ 143 वाली रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी 2 एडिशनल है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको रिपोर्ट देनी है, एक आपको RBI को देनी है, ठीक है। अब RBI को भी 2 सेक्शन में रिपोर्टिंग जाती है, एक जाती है सेक्शन 45MA के अंदर, जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है सेक्शन, और दूसरी जाती है आपकी एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा। तो 2 रिपोर्टिंग होती है RBI को भी, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 45MA, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो सेक्शन 45MA सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट्स जो कंपनी एक्सेप्ट करती है उसके लिए है। तो NBFC जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है उनको क्या देना पड़ता है, क्या ऑडिटर को ये बताना है। सेक्शन 45MA बोलता है कि ऑडिटर तुम ये बताओ कि क्या अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स ले रखे हैं तो जो जो इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स जो देने थे रिलेटिंग टू द डिपॉजिट्स, क्या वो सबमिट किए गए हैं जो कि रिक्वायर्ड थे अंडर चैप्टर 3B ऑफ द RBI एक्ट, क्या वो सबमिट किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर उन्होंने नहीं किए गए तो ऑडिटर आपकी ड्यूटी ये है कि आप RBI को ये बताए कि कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स है जो कि आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कंपनी। तो मुझे RBI को ये बताना है कि अगर चैप्टर 3B में जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, अगर उन्हें, मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स जो ज़रूरत है, मतलब पब्लिक डिपॉजिट वालों को एक जो चैप्टर 3B में पर्टिकुलर्स दे रखे हैं वो देने होते हैं, तो अगर वो नहीं दिए तो
एज अ ऑडिटर आई हैव अ ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द आरबीआई, ठीक है, ये सेक्शन 45A बोलता है, ठीक है। अब देखो बोर्ड को मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो बोर्ड को मुझे क्या क्या रिपोर्ट देनी है, तो बोर्ड में देखो मुझे देखो अगर एक मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा रिपोर्ट देनी है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बहुत पॉइंट्स है जो सारे एनबीएफसीज के लिए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो सिर्फ जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है उसके लिए है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो उनके लिए है जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब पहला सबके लिए, ठीक है, पहला सबके लिए, दूसरा डिपॉजिटेटिंग के लिए, तीसरा जो डिपॉजिटेटिंग नहीं करता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमारी कंपनी के पास, मुझे एज ऑडिटर बोर्ड को बताना है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है, फिर मुझे ये भी बताना है क्या हम वो अभी आज भी वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं जो प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया था 50% वाला, ठीक है। तो क्या आज भी हम एंटाइटल टू कंटिन्यू टू होल्ड सच COR है, मतलब इसमें 45IA वाली कंडीशन, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा नेट ऑन फंड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नेट ऑन फंड क्या हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मतलब देखो इसमें तो 45IA चिपकाना है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस नेट ऑन फंड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट एडिशनल है, हर एनबीएफसी को एक स्टैट ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना है कि वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को होल्ड करती है एंड इट इज एलिजिबल टू होल्ड इट, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये रीजनल ऑफिस को दे देना है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द नॉन बैंकिंग सुपरविजन, कब तक देना है, विद इन 1 month from the date of the finalization of the balance sheet or 30th December whichever is earlier but not later than 30th December, मतलब फाइनलाइजेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट के 1 महीने के अंदर अंदर या फिर 30 दिसंबर से पहले पहले, whichever is earlier, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट हो जाता है ना। अब जो पब्लिक डिपॉजिट्स होल्ड करता है, देखो मतलब सबके लिए क्या क्या देना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस नेट ऑन फंड, 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब ऊपर अब देखो सब जो पब्लिक डिपॉजिट्स होल्ड करता है, ठीक है, उसके लिए बात में मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स है टुगेदर विद द अदर बोराइंग्स, ठीक है, टुगेदर विद द अदर बोराइंग्स, ठीक है, जैसे कि है ना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। तो क्या वो विद इन द लिमिट है जो आरबीआई ने बता रखी है, पब्लिक डिपॉजिट्स टुगेदर विद द अदर बोराइंग आर विद इन द लिमिट्स, है ना। अगर वो लिमिट में नहीं है तो इन एक्सेस में है तो है ना, तो क्या वो रेगुलराइज किए गए हैं या नहीं किए गए, ठीक है। अगर वो एक्सेस में है तो क्या उसे रेगुलराइज किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था पब्लिक डिपॉजिट मैं तभी एक्सेप्ट कर सकता हूं जब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्राइटेरिया मुझे मिले, ठीक है। तो मुझे बताना वेदर द एनबीएफसी इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्राइटेरिया, है ना, क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एन अप्रूव्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस। तो क्या वो ऐसा कर रही है कि वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बिना, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक ग्रेड लेना पड़ता है, तो क्या उसके बिना ही क्या वो पैसा उठा रही है, ठीक है। क्या उसने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वेदर द जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो क्या पता सही तरीके से डिटरमाइन किया गया है, एंड क्या जो मिनिमम CRAR था जो हमने ऊपर 15% पढ़ा था, ठीक है, क्या वो कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। और क्या जो मतलब देखो एक क्रेडिट रेटिंग में मैं इतना ही अमाउंट उठा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या मुझे क्रेडिट, देखो सबसे पहली बात तो क्या जो मुझे क्रेडिट रेटिंग मिली क्या वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाली थी या नहीं थी, देखो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाली नहीं थी और तब भी मैं पब्लिक डिपॉजिट लेता हूँ तो मैं वहीं पर गलत हो गया, ठीक है। अगर मान लो क्रेडिट रेटिंग ली और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ऊपर थी, लेकिन उस क्रेडिट रेटिंग की जो लिमिट थी अमाउंट, इतना ही अमाउंट उठा सकते हो, क्या मैंने उस लिमिट को तो एक्सीड नहीं कर दिया, वेदर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर हैज एक्सीडेड द लिमिट स्पेसिफाइड बाय सच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो जो क्रेडिट रेटिंग है क्या वो पहली बात तो आज की डेट में फोर्स में होनी चाहिए, और क्या मेरा वो अमाउंट उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये देखना है मुझे, ठीक है। मैंने कोई कंडीशंस तो वायलेशन नहीं करी, जो पब्लिक डिपॉजिट्स की रेगुलेशन थी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक, NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 2016, क्या मैंने इसका वायलेशन तो नहीं किया, ठीक है ना। क्या मैंने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया इन रीपेइंग इट टू इट्स डिपॉजिटर्स लाइक द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, कहीं मैंने इसका डिफॉल्ट तो नहीं किया, ठीक है ना। क्या मैंने प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, तो ये पॉइंट तो दूसरी एनबीएफसी के केस में भी आपको लिखना है, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल नॉर्म। ये क्या होना है, ये तो मतलब ये जो पॉइंट था ना ये बेसिकली ऑल एनबीएफसी के केस में है, क्योंकि ये पब्लिक डिपॉजिट में भी देना है और नॉट एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट में भी देना है। एक लिक्विड एसेट्स का पॉइंट आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब जब आप पब्लिक डिपॉजिट्स होल्ड करते हो आपको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या आपने लिक्विड
लिक्विड एसेट्स के अंदर जो वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट एंड क्या उसने एनबीएस 3, ठीक है ना, ठीक है, एंड वेदर द डिटेल्स ऑफ द डेजिग्नेटेड बैंड इन विच द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफिस कंसर्न ऑफ द आरबीआई इन टर्म्स ऑफ एनबीएस 3। मतलब लिक्विड एसेट्स की जो रिटर्न जाती है ना क्वार्टरली, उसका फॉर्म है एनबीएस 3, ठीक है। वेदर कंपनी हैज फर्निश्ड टू द आरबीआई, ठीक है, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स एज इन फॉर्म नंबर एनबीएस 1, क्या रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स दिया गया है, ठीक है। मुझे क्या मैंने क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स दी गई है ना, बस ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आ गए। मतलब बट इस बेसिकली बात क्या है, सिंपल सा फंड है, पता है, बहुत सिंपल फंड है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। क्या पब्लिक डिपॉजिट्स थे, क्या वो लिमिट के अंदर दिए गए, अगर नहीं दिए गए तो क्या वो रेगुलराइज किए गए हैं, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट क्राइटेरिया था, ठीक है, जितना क्रेडिट रेटिंग ने बताया था क्या मैंने उससे उतना ही पैसा लिया, अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा चला गया, ठीक है, वेदर द एडिटेड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, है ना, हैज़ एक्सीडेड द लिमिट, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है ना, क्या क्रेडिट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सही से डिटरमाइन किया गया है, ठीक है, एंड आई एम कंप्लाइंट विद दैट क्रेडिट रेटिंग कैपिटल रेशियो, ठीक है, मैंने कोई कंडीशंस तो वायलेट नहीं करी है ना, मैंने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है ना, ठीक है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मैंने कंप्लायंस किया है ना, लिक्विड एसेट्स एनबीएस 3 में मैंने फाइल किया है ना, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स एनबीएस 1 में फाइल किया है ना, क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। अब देखो, जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं होल्ड करती तो उसके केस में आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट। तो हमें एज ऑर्डर ये देखना है कि वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास द रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी पब्लिक डिपॉजिट, वेदर द कंपनी, मुझे ये भी चेक करना है कि क्या कंपनी ने वेदर द कंपनी हैज एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, तो मुझे ये भी चेक करना है कि क्या पता झूठ बोल के उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट ले लिया हो, ठीक है। फिर वही प्रूडेंशियल नॉर्म का पॉइंट आ गया, ठीक है, प्रूडेंशियल नॉर्म का जो ऊपर भी पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था कि नीचे भी वापस आएगा, है ना। एक कैपिटल एडिक्वेसी का भी पॉइंट है जो ऊपर भी था और नीचे भी था, कि क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, है ना, वो वेदर सच रेशियो इज इन कंप्लायंस विद द मिनिमम सीआरएआर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना। अब ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जो कंप्यूटेशन होती है ना, ये आरबीआई को दी जाती है इन फॉर्म नंबर एनबीएस 7, ठीक है। तो अभी हमने 3 फॉर्म पढ़े, एक एनबीएस 3 पढ़ा, एक एनबीएस 1 पढ़ा एंड एनबीएस 7 पढ़ा। तो एनबीएस 3 जो था, एनबीएस 3 वो हमने जो पढ़ा था वो कहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा हमने, 2 मिनट, एनबीएस 3 जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो हमने लिक्विड एसेट वाली बात थी, ठीक है। एनबीएस 1 क्या था, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, और एनबीएस 7 जो अभी हमने पढ़ा वो कैपिटल एडिक्वेसी का पॉइंट है। तो क्या वो कंप्लायंस मिनिमम सीआरएआर से नीचे तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक पॉइंट स्पेसिफिकली देना है, क्या ये जो एनबीएफसी है इसे हमने करेक्टली क्लासीफाई किया है एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो एनबीएफसी एमएफआई की डेफिनेशन है कि हम इतने % लोन माइक्रो फाइनेंस वालों को देंगे, ठीक है। तो क्या वो डेफिनेशन को वो मीट करती है अगर वो एनबीएफसी एमएफआई है तो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अब देखो, कुछ बहुत कंपनीज को आरबीआई ना माफ कर सकता है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एडवाइस फ्रॉम द आरबीआई आ सकती है दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड सीओआर। तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो उन कंडीशंस को कंप्लाई कर रही है एनबीएफसी या नहीं कर रही है, ठीक है, जो कंडीशंस आरबीआई ने लिखी थी कि जिसकी वजह से उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो सेक्शन 45 आई की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नेट ऑन फंड्स होना चाहिए। अगर मान लो मैं पैरा 3 जो ऊपर बोर्ड वाली रिपोर्ट थी, एक तो हमने 45 में पढ़ा, वो वाला छोड़ दो, एक पैरा 3 पढ़ा जिसमें हमने 3 बाइफरकेशन करे, 8 सबके लिए, 8 सिर्फ डिपॉजिट डेटिंग के लिए, 8 नॉन डिपॉजिट डेटिंग के लिए। तो अगर इनमें कोई भी मैं क्वालिफाइड स्टेटमेंट देता हूं तो मुझे इसके रीजन भी देने पड़ेंगे, रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक एक्सेप्शन रिपोर्टिंग देनी है, ये पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मुझे एक आरबीआई को, ये रिपोर्ट कहा जाएगी आरबीआई को, आरबीआई 2 रिपोर्ट है, एक सेक्शन 45 MA वाली, एक एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कौन कौन सी है, अगर मैं नॉन कंप्लायंस करता हूं, अगर पैरा 3 के अंदर, ठीक है ना, एनी ऑफ द आइटम्स रेफर्ड टू इन पैरा 3, है ना, स्टेटमेंट विच इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, तो मुझे आरबीआई को भी बताना पड़ेगा। मतलब अगर पैरा 3 में मैं बोर्ड को कोई क्वालिफाइड स्टेटमेंट देता हूं तो वो मुझे आरबीआई को भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने नॉन कंप्लायंस किया है चैप्टर 3B वाला, ये हमने कहाँ पढ़ा था जब हम पब्लिक डिपॉजिट्स वाला ये जो पॉइंट नहीं पढ़ रहे थे कि चैप्टर 3B का कंप्लायंस किया गया पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर, तो वो चैप्टर 3B, तो मतलब मुझे ये बताना है कि अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, देखो नॉन कंप्लाइंट, ठीक है, मतलब अगर अनफेवरेबल रिमार्क दिया गया पैरा 3 के अंदर, या फिर नॉन कंप्लायंस किया गया है किसका, चैप्टर 3B का, या एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट की डायरेक्शंस का, या फिर जो दोनों रेगुलेशन है कौन कौन सी, देखो एक तो मैंने बताया था डिपॉजिट डेटिंग एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट प्लस नॉन डिपॉजिट डेटिंग, एक क्या बताया था, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डेटिंग। तो 2 रेगुलेशन है, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डेटिंग, ठीक है, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डेटिंग एंड डिपॉजिट डेटिंग, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शंस का क्या मैंने कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस किया तो मुझे आरबीआई को बताना पड़ेगा। तो मैं देखो मैंने कौन चीज़ की, देखो अगर मैंने पैरा 3 में कोई क्वालिफाइड स्टेटमेंट दी तो आरबीआई को भी बताना पड़ेगा। अगर मैंने नॉन कंप्लायंस किया है किसका, 3B का, चैप्टर 3B का,
डिपॉजिट्स वाली का और ये डायरेक्शंस का, तो मुझे एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी किसे, रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द नॉन मेंटेनेंस सुपरविजन ऑफ द आरबीआई, ठीक है। तो ये मुझे तभी बताना है जब नॉन कंप्लायंस हुई है, ठीक है ना। द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर अंडर सब पैराग्राफ शैल टू रिपोर्ट ओनली ऑन द कॉन्ट्रावेंशंस, ठीक है, मतलब अगर कॉन्ट्रावेंशन एंड सच रिपोर्ट शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस। अगर कंप्लायंस किया गया है तो मुझे कोई रिपोर्टिंग नहीं देनी है, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तभी मुझे रिपोर्टिंग देनी है। अब देखो ये कंप्लायंस विद कारो 2020 है ना, ये जब हम कारो पढ़ेंगे ना तो हम उसी के साथ ये लिंक कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी आप छोड़ दो पॉइंट, ठीक है। अब देखो इंड एएस में, देखो इंड एएस कब से लगे एनबीएफसी पे, 8 अप्रैल 2018 के ऊपर, ठीक है। अब पहले जब लगा था 8 अप्रैल 2018 में, तो सारी लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटी दोनों जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से 500 या 500 करोड़ से ज़्यादा है उसके ऊपर लगी थी, ठीक है। तो मतलब लिस्टेड एंड अनलिस्टेड जिसका 500 या 500 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर लग गया था इंड एएस, ठीक है। और उनकी सब्सिडरी होल्डिंग जेवी और एसोसिएट उनके ऊपर भी लग गया था, मतलब एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ, है ना, और 500 या 500 करोड़, ठीक है। अब लेकिन जो मान लो 1 अप्रैल 2019 से सारी लिस्टेड कंपनी के ऊपर लग गया, जो लिस्टेड कंपनी 500 करोड़ से नीचे वाली थी, ठीक है, उनके ऊपर तो लग ही गया। साथ में अनलिस्टेड जो 250 करोड़ से ऊपर है लेकिन 500 करोड़ से नीचे है, ठीक है ना, 250 करोड़ और मोर से है बट लेस देन 500 करोड़, उनके ऊपर भी लग गया, ठीक है। तो अब जो नेटवर्थ का जो कैलकुलेशन होगा वो कब किया जाएगा, द नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च 2016 और दी फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विच एंड्स आफ्टर दैट डेट। मतलब मान लो एक नई कंपनी खोली है तो उसके लिए तो ये वाला फंडा लग जाएगा कि फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब खत्म हो रहे, और अगर कोई पुरानी कंपनी है तो उसके लिए 31 मार्च 2016 डेट को हमने ये 500 और 250 करोड़ वाली लिमिट देखनी है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट दे रखा है कि इसमें क्या क्या फॉर्मेट है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में देखोगे ना तो सबसे बड़ा फर्क पता क्या है, इसमें देखो जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें करंट एसेट दिया होता है और नॉन करंट एसेट दिया होता है, इसमें आप देखो फिनेंशियल एसेट दिया है और नॉन फिनेंशियल एसेट दिया है, ठीक है। मतलब सिर्फ ये एसेट की बाइफर्केशन है, ठीक है। तो मतलब इसमें फिनेंशियल लाइबिलिटी दी है एंड नॉन फिनेंशियल लाइबिलिटी दी है, तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है, ठीक है। और फिर दूसरा फर्क आप यहाँ से देख पाओगे कि इसमें ना लिक्विडिटी के बेसिस पे अरेंज किया गया है। जैसे मान लो कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर बैंक बैलेंस है, तो इस हिसाब से इन आइटम्स को अरेंज किया गया है। तो देखो जो डिवीजन 2 और डिवीजन 3 के बीच में फ़र्क क्या गया है, तो डिवीजन 2 और डिवीजन 3 के बीच में फ़र्क क्या गया है, तो डिवीजन एनबीएफसी हैव बीन अलाउड टू प्रेजेंट द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल होता है, और उसमें क्या होता था, करंट एंड नॉन करंट होता था, ठीक है। इसमें देखो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है कोई भी अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर का आइटम, ठीक है, उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। और अगर वो 1% ऑफ द टोटल इनकम, यहाँ पे क्या देखना है, टोटल इनकम देखना है, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा है ना तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और डिवीजन 2 क्या बोलता है, अगर मुझे सेपरेटली डिस्क्लोजर तभी करना है, ठीक है ना, जब वो एक्सीड करता है 1% किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। यहाँ पे इसका देखना है टोटल इनकम का, ठीक है, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹10 लाख विच एवर डिजायर। मुझे सेपरेट डिस्क्लोजर तभी देना है जब वो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या ₹10 लाख विच एवर डिजायर। और यहाँ पे क्या है, 1% ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे 10 लाख की लिमिट नहीं है, और यहाँ पे किसका देखना है, 1% टोटल इनकम का देखना है, ठीक है। अब मुझे तो मान लो रिसीवेबल्स के अंदर ना, अगर मुझे कोई पैसा लेना है किसी एलएलपी से जिसमें मेरा डायरेक्टर या तो पार्टनर है या मेंबर है, तो मुझे उस एलएलपी का अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ट्रेड रिसीवेबल में कोई एलएलपी है जिसमें मेरा डायरेक्टर या तो पार्टनर है या मेंबर है, तो मुझे वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की जो ग्रुपिंग है, मतलब जो नोट्स में मैं देता था वो मुझे फेस पे देनी पड़ेगी। एनबीएफसी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम्स कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एज पार्ट ऑफ द नोट्स, ठीक है। मुझे उसमें फेस पे बताना पड़ेगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इंटरेस्ट का इतना है, इसका इतना है, ऐसा है ना। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इम्पेयर्ड। मैंने बताया ना ईसीएल मॉडल में 2 चीज़ें होती है, एक तो जिसके अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है क्रेडिट रिस्क के अंदर, एक दूसरा जो क्रेडिट इम्पेयर्ड होता है। तो मुझे इन दोनों का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, ठीक है ना। अब देखो कुछ कंडीशंस हो सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो उनके बारे में भी मुझे एक नोट देना है कि भाई मैं इस रिजर्व को मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप you have liked the video. Please do subscribe to my channel. Please hit the like button. अगर आपको सही में पसंद आ रहा है तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट भी करके जरूर बताइएगा कि और आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस बनानी है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।